Good morning, students. I am your English teacher Divya Shrivastava, and today in English literature we are going to start a new fresh chapter, chapter 10, and the name of this chapter is The Real Princess. ये हमारा it's our 10th chapter. आज हम इसको पढ़ने वाले हैं. Today we will see the summary of this story. The Real Princess. Firstly हम जानेंगे real princess मतलब क्या होता है. Real मतलब होता है असली और princess मतलब होता है राजकुमारी. तो असली राजकुमारी. So this story is all about a prince and a princess. So let's get started. Firstly, we will see the characters of this story. The characters are the king, यानी कि राजा, the queen, यानी कि रानी, the prince, राजकुमार. राजकुमार कौन होता है? राजा रानी के जो सन होता है उसको प्रिंस बोलते हैं. और the princess एक राजकुमारी. किंग और क्वीन की जो बेटी होती है उसको प्रिंस बोलते हैं बेटे को, और जो बेटी होती है, डॉटर होती है, उसको प्रिंसेस बोला जाता है. So this story is all about a prince and a princess. Now we will see the summary of this story. There was a prince who wanted to marry, but he could not find a real princess. Once upon a time, there was a prince who wanted to marry, but he could not find anyone. Why? Because he wanted to marry with a real princess. एक बार की बात है, एक राजकुमार था, एक प्रिंस था जो कि शादी करना चाहता था, लेकिन उसको कोई मिल नहीं पा रहा था. क्यों? क्योंकि वो एक असली राजकुमारी से शादी करना चाहता था. There were many princes, but it's very difficult to find out which one of them was real. बहुत सारी राजकुमारियां थी, बहुत सारी, जैसे स्वयंवर होता है या राजकुमार कहीं जाते हैं शादी के लिए. There were many princes, but it's very hard to tell. It's very identified to tell कि which one of them was real. उनमें से असली कौन है ये जानना बहुत ही ज्यादा मुश्किल था प्रिंस के लिए, for prince. Because there was always something about them that was very funny. उन जो लड़कियां थी, जो राजकुमारियां थी, उनके बारे में कुछ ना कुछ बहुत ही स्ट्रेंज होता, बहुत ही कुछ ज्यादा फनी होता. तो राजकुमार को ऐसा लगता कि नहीं, she was not a real princess. So the prince was very sad and he came back home. वो अपने घर वापस आ गया और बहुत ही ज्यादा दुखी था, because he couldn't find anyone. Then one evening a princess knocked at the palace gate in the middle of the terrible storm and the rain. One evening क्या हुआ? There was a storm, there was a lightning, there was a thunder, and it rained very and very hard. It was a terrible storm. जो तूफान था वो बहुत ही ज्यादा भयानक था. And there was also lightning and thunder. आसमान से बहुत ही तेज बिजली कड़क रही थी, बहुत ही तेज गरज रही थी, आवाज आ रही थी, लाइटनिंग हो रही थी, बहुत तेज तूफान आ रहा था, आंधी आ रही थी और बहुत ही तेज बारिश हो रही थी. इट रेन वेरी वेरी हार्ड. सो इन द मिडल ऑफ द स्टॉर्म देयर वाज अ नॉकिंग साउंड एट द पैलेस, एट द गेट ऑफ अ पैलेस. एक नॉक करने की आवाज आई पैलेस के गेट में. एंड हु वाज देयर? कौन था वहां पे? देयर वाज अ प्रिंसेस. एक प्रिंसेस थी वहां पे. ठीक है. A princess knocked at the palace gate in the middle of terrible storm and the rain. उस भारी तूफान और स्टॉर्म के बीच में प्रिंसेस ने महल के दरवाजे पे नॉक किया. The king let her enter the palace and told the queen to put a small pea under the 20 soft mattress on the bed. The princess had to sleep all night. अब जब पैलेस से नॉक की आवाज आ रही थी गेट पे, तो जो वहां का किंग था, यानी कि जो ओल्ड किंग था, वो खुद से उसको दरवाजे को खोलने के लिए गया. The old king went to open the gate of the palace. Then he saw, क्या देखा उसने? Oh, there was a princess. एक वहां पे प्रिंसेस खड़ी हुई. And she was so wet that she didn't look like that. वो इतनी ज्यादा भीगी हुई है कि वो प्रिंसेस की तरह लग ही नहीं रही है. Why? Because she was so wet and there was a storm and it was raining outside and वो बहुत ज्यादा भीग गई थी. The water dripped down from her hair, from her clothes, and her shoes were wet too. उसके जो पानी था वो सर से, बाल से, कपड़ों से टपक रहा था. ड्रिप मतलब टपक रहा था.
और उसके जो जूते थे वो भी क्या थे, भीगे हुए थे। तो वो बिल्कुल भी प्रिंसेस की तरह नहीं लग रही थी। बट शी सेड, उसने क्या बोला, दैट आई एम सो वेट, मैं बहुत ही ज्यादा भीगी हुई और मैं बहुत ज्यादा भीग गई हूँ, इसलिए पानी मेरी ऐसी हालत है। एंड बट आई एम अ रियल प्रिंसेस, मैं असली राजकुमारी हूँ, प्लीज लेट मी, प्लीज मुझे अंदर आने दीजिए। he said to the king, उसने राजा से बात बोली। Then the king let her enter the palace, उसने उसको अंदर आने दिया। and told the queen to put a small pea under the 20 soft mattress on the bed. The princess had to sleep all night. जो किंग था उसने खुद में क्या सोचा, we will find out if is it true, अगर ये सही है कि you are a real princess then we will find out। उसने बात कही नहीं, he said nothing but he thought, उसने खुद में ये बात सोची। फिर उसने रानी से क्या बोला, उसने प्रिंसेस को अंदर आने दिया एंड उसने अपनी रानी को, अपनी वाइफ को उसने जाके बोला कि सी, एक प्रिंसेस है जो ऐसी ऐसी कंडीशन है, बाहर बहुत बारिश हो रही है, बाहर बहुत ज्यादा स्टॉर्म है, टेरिबल, बहुत लाइटिंग थंडर है, तो मैंने उसको पैलेस में अंदर आने दिया। एंड शी वाज सेइंग कि शी वाज अ रियल प्रिंसेस एंड वी विल फाइंड आउट, और हम इसका पता लगाएंगे। कैसे पता लगाएंगे? तो किंग ने क्वीन से कहा कि गो एंड बेड जो है जिसपे राजकुमारी सोने वाली है, उस बेड में 20 गद्दों को लेके जाओ, 20 सॉफ्ट मैट्रेसेस को लेके जाओ और उसके नीचे एक क्या रख दो, छोटा सा मटर का दाना रख दो, अ स्मॉल पी, छोटा सा मटर का दाना बेड पे रख दो और उसके ऊपर, उस मटर के दाने के ऊपर 20 सॉफ्ट मैट्रेस यानी कि 20 मुलायम गद्दे बिछा दो और उस पे अब कौन सोएगी, प्रिंसेस सोएगी। ठीक है, तो रानी ने बिल्कुल वैसे ही किया जैसे उसको कहा था किंग ने करने के लिए, रानी ने बिल्कुल वैसे ही किया और प्रिंसेस उसमें 20 गद्दों के ऊपर आराम से सोई। नेक्स्ट मॉर्निंग रानी ने प्रिंसेस से पूछा, क्वीन ने प्रिंसेस से क्या पूछा, डिड यू स्लीप वेल, आराम से सोई, कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई तुम्हें माय डियर? देन प्रिंसेस रिप्लाइड, उसने क्या रिप्लाई दिया, इट वाज सो हॉरिबल, बहुत ही ज्यादा भयानक था। आई डोंट नो व्हाट वाज इन माय बेड, मुझे नहीं पता मेरे बेड के नीचे क्या था। गॉड ओनली नोज व्हाट वाज इन माय बेड, भगवान ही जाने मेरे बेड के नीचे क्या था। आई रियली डोंट नो एंड इट वाज लाइक कि समथिंग वाज वेरी हार्ड इन माय बेड, ऐसा था बहुत ज्यादा कुछ बहुत कठोर था, बहुत ही हार्ड था मेरे बेड में। एंड माई ऑल बॉडी इज ब्लू एंड ब्लैक एंड माई बॉडी इज एक्टिंग, मेरे बॉडी में बहुत ही दर्द है। ठीक है, उतना ज्यादा, इट वाज सो हॉरिबल। उसने बताया कि मैं 20 गद्दों में सोई लेकिन मेरी बॉडी बहुत एक्टिंग कर रही है, बहुत दर्द हो रही है, मुझे नहीं पता मेरे बेड के नीचे क्या था, बट बहुत ही ज्यादा हार्ड कुछ था, मुझे ऐसी फीलिंग आई और मैं बहुत ही मुश्किल से, आई हैव हार्डली क्लोज माई आईज ऑल नाइट, बहुत मुश्किल से अपनी आंख बंद कर पाई, बहुत मुश्किल से मैं सो पाई। The next morning, princess told the queen how hardly she slept last night and now her body was aching. उसने बताया कितनी मुश्किल से वो सो पाई और उसकी बॉडी में कितना पेन हो रहा है। Now, they all knew that she was a real princess. Nobody but a real princess could have such a delicate skin. अब उन सभी को यानी कि किंग को, क्वीन को और प्रिंस को ये पता चल गया कि शी वॉज अ रियल प्रिंसेस, बिकॉज 20 गद्दों के नीचे एक मटर के दाने का जो पेन होता है वो केवल एक प्रिंसेस ही फील कर सकती है। प्रिंसेस की स्किन इतनी, प्रिंसेस कितने अच्छे से रहती है, कितने कि उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होती, उनको थोड़ी सी भी डिफिकल्टी वो टॉलरेट नहीं कर सकती। तो 20 गद्दों के नीचे छोटे से मटर के दाने को भी उसने फील कर लिया और ये एक रियल प्रिंसेस ही कर सकती। इस तरीके उन लोगों ने जान लिया, दे ऑल न्यू कि शी वाज अ रियल प्रिंसेस। इतनी सॉफ्ट, इतनी डेलिकेट स्किन एक प्रिंसेस की ही हो सकती है। देन फाइनली सो द प्रिंस टुक हर द प्रिंसेस फॉर हिज वाइफ एंड दे गॉट मैरिड। राजकुमार ने राजकुमारी को अपनी वाइफ बना लिया, ठीक है, एंड दे गॉट मैरिड, उन्होंने आपस में शादी कर ली। और वो जो मटर का दाना था जो 20 गद्दों के नीचे रखा था जिसपे राजकुमारी सोई थी, उस मटर को दाने को कहाँ रखा गया, म्यूजियम में रखा गया। म्यूजियम क्या होता है, संग्रहालय, संग्रहालय बोलते हैं इसको हिंदी में। म्यूजियम मतलब बहुत सारी जो स्ट्रेंज चीजें होती हैं, बहुत यूनिक चीजें होती हैं, उनको हम म्यूजियम में रखते हैं ताकि लोग आ सके और उनको
देख सके। ठीक है, तो उस मटर के दाने को म्यूजियम में रखा गया और उसको वहां शायद अभी भी देखा जा सकता है, अगर किसी ने उसको चुराया ना हो अभी तक, तो उस म्यूजियम में उस मटर को दाने को आज भी देखा जा सकता है। So this story of a prince and a real princess is completed here. I hope आपको चैप्टर समझ में आया होगा, इसकी समरी समझ में आई होगी। In next video we will start a new fresh chapter. Thank you students.